اسرائیل کی فلسطین میں دہشت گردی صورتحال پر وزیر خارجہ نے 4 نکاتی لائحہ عمل تجویز کر دیا۔ شاہ محمود قریشی کا غزہ میں بمباری فوری بند کرنے کا مطالبہ، اسرائیلی مظالم اور بیت المقدس کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی۔ All necessary steps must be taken for stopping the ongoing aggression against the Palestinian people and their properties. We call for immediate action on the following. 1. The international community must protect the Palestinians against the blatant and illegal use of force and flagrant attempts to create a false equivalence between Israel, the aggressor, and Palestinians, the victims, are inexcusable as the collective voice of the Muslim Ummah. The OIC should work in unity to dispel this deliberate its genesis to the Palestinian issue. In this hour of need, the Muslim Ummah must exhibit strong solidarity and support. پاکستان کی ساحلی پٹی کے قریب رہنے والے پریشان نہ ہوں، سمندری طوفان تاؤتے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات نے واضح کر دیا ہے، کہا کراچی میں بارش نہیں ہوگی، صرف گرمی پڑے گی اور گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ سمندری طوفان تاؤتے نے ہلچل مچا دی، آئندہ 24 گھنٹوں میں شدت مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان سے پاکستان کی ساحلی پٹی کو کوئی خطرہ نہیں۔ 18 مئی کو بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرائے گا۔ تاؤتے طوفان ہے، وہ کراچی سے اب اس کا ڈسٹینس 1210 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جنوب مشرق میں اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، انڈین گجرات کو کراس کرے گا اور پاکستانی ساحلی پٹی کو اب کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے کہیں کسی بھی ساحلی پٹی کو۔ سندھ کی ساحلی پٹی پر کل سے بارشیں متوقع ہیں، کراچی میں صرف گرمی میں اضافہ ہوگا۔ بارش کا جو تھا کراچی میں امکان نہیں رہا بارش کا، البتہ تھرپارکر ڈسٹرکٹ، بدین، عمر کوٹ اور کانگڑ کے کچھ حصوں میں اور میرپور خاص میں، ان ڈسٹرکٹس میں بارش ہو جائے گی، خاص کر ان کے جو جنوبی حصے ہیں جو انڈیا کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پر اچھی بارش ہو جائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آئندہ 3 روز تک پارہ 40 سے 42 ڈگری تک جائے گا، گرد آلود ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ کراچی میں بارش کا خدشہ ہے لیکن ندی نالے کچرے سے بھرے ہیں، عوام نے صفائی کے دعوے مسترد کر دیے۔ سید رضوان عالم کی رپورٹ دیکھیے۔ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے کراچی، صرف کھانے والے سب۔ دعوے کچھ حقیقت کچھ اور، کراچی کے نالوں کی مکمل صفائی نہ ہو سکی، بیشتر کچرے سے لبالب بھرے ہیں۔ کیفے پیالہ کے مقام پر گجر نالہ کسی کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ نیو کراچی، گولی مار اور لزبیلا کے مقامات پر بھی گجر نالے میں کچرے کے ڈھیر ہیں۔ محمود آباد اور اورنگی نالے کا بھی جگہ جگہ یہی حال ہے۔ بس یہ خالی یہ توڑ کے چلے گئے، کچرا کچھ نہیں اٹھایا۔ عید کی طویل تعطیل میں کراچی میں کچرا نہیں اٹھایا گیا۔ شہر میں چلنے والی تیز گرد آلود ہوائیں جگہ جگہ پڑے کچرے کے ڈھیر اور گندگی سڑکوں پر لے آئی ہے۔ ترجمان NDMA کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کے خدشے کے پیش نظر کراچی کے نالوں سے ہزاروں ٹن کچرا اٹھایا گیا ہے۔ کیمرامین علی مشرف کے ساتھ سید رضوان عالم، سما، کراچی۔ لاہور ہائی کورٹ کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا فیصلہ، وفاقی حکومت نے فیصلے کے خلاف اپیل تیار کر لی، کل سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے شہباز شریف سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلے کے خلاف حکومتی لیگل ٹیم کی تیار کردہ اپیل کے نکات منظر عام پر آ گئے۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی جائے گی۔ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ معزز فاضل جج متعلقہ محکمے کو بغیر نوٹس کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں۔ ملزم کی ضمانت کی درخواست کچھ روز پہلے ہائی کورٹ کے فاضل ججز نے خارج کی۔ اگر آئین، قانون اور عوام کے حق کی بات کرنا غداری ہے تو یہ غداری ہم بار بار کرتے رہیں گے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا رد عمل، کہا غداری کا کھیل برسوں سے کھیلا جا رہا ہے، اب عوام حقیقت جان چکے ہیں، اصل غدار وہ ہے جس نے کشمیر کا سودا کیا۔ مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ وہ وقت دور نہیں جب نواز شریف پاکستان میں کارکنان کے درمیان ہوں گے۔ غداری کا لقب نواز شریف کے حصے میں بھی آیا تھا، غداری کا لقب مریم نواز کے حصے میں بھی آیا تھا، لیکن
अगर हक को हक कहना, सच को सच कहना, आईन की सरबुलंदी की बात करना, इदारों की सरबुलंदी की बात करना, कानून की पासदारी करना, अगर गद्दारी है तो हाँ, ये गद्दारी हम बार बार करेंगे। गद्दार वो है जो कश्मीरियों का सौदा करके, कश्मीर का सौदा करके मुंह लटका के पाकिस्तान वापस आए। जब आप 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को बिठाकर अवाम के वोट पर डाका डालकर एक सिलेक्टेड को 22 करोड़ के सरों पर मुसल्लत करते हैं, उसको कहते हैं गद्दारी। वो वक्त दूर नहीं जब इस धरती का बेटा जावेद लतीफ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हमारे दरमियान होगा, बल्कि वो वक्त भी करीब है जब इस धरती का बेटा नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान होगा। ओआईसी की मीटिंग के बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं और उनके हकूक़ के लिए जो वो आवाज़ बुलंद करते रहे, वो आज भी हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है और रहेगा। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली जहरियत की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं जो इस जहरियत को सही अंदाज में लोगों के सामने पेश कर सकें। बहरहाल इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है और बैनुल अक़वामी क़वानीन की जिस अंदाज में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इसके ख़िलाफ़ सफ़ आरा होना उम्मा की ज़िम्मेदारी है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में निहत्ते नमाजियों पर जो तशद्दुद किया गया, बच्चों को निशाना बनाया गया, ख़वातीन को निशाना बनाया गया, इसकी माजी करीब में कोई मिसाल दिखाई नहीं देती और उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। मैंने अपने खिताब में 4 नुक्तों को उजागर किया जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तर्जुमानी करते हैं। नंबर 1, मैंने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी फिलफौर हरकत में आए और इज़राइल जो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है उसे फिलफौर बंद करवाया जाए। सीज़ फायर हमारी तरजीह है। मैं समझता हूँ कि ये जहरियत नाकाबिल बर्दाश्त है और पाकिस्तान हर फोरम पर इस आवाज़ को बुलंद करेगा। मेरा दूसरा मुतालबा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, जनरल असम्बली और ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो करारदादें हैं, इन पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। मेरा तीसरा मुतालबा था कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इर्तिकाब और बैनुल अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी पर इज़राइल को इस्तिस्ना हासिल हरगिज़ न दिया जाए। मेरी चौथी जो गुजारिश थी वो ये है कि जहरियत के मुर्तकिब इज़राइल और मज़लूम फ़लस्तीनियों को एक सफ़ में खड़ा करना नाइंसाफ़ी है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया गया, ये उस आवाज़ को दबाने की कोशिश है जो नाकाम होगी। आप देख रहे हैं कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया के इस दौर में सच्चाई को लोगों की नज़रों से ओझल करना नामुमकिन है। मेरी कल फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफ़ोन पर बात हुई, तबादला ख्याल हुआ। मैं दीगर वज़राए ख़ारजा से राब्ते में हूँ और मेरी आज शाम को अमेरिका के
वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू होगी। चीन के वज़ीर ख़ारजा से कल मेरी मुफस्सल गुफ्तगू हुई और मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमानी कर सकूं। इंशाअल्लाह इन जज्बात को हर फोरम पर उठाना मेरा फ़र्ज़ है, बहैसियत एक पाकिस्तानी के, बहैसियत एक मुसलमान के, बहैसियत एक इंसान के। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सुरखरू फरमाए कि इस घड़ी में हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े दिखाई दें और उनके दर्द में उनका दर्द बांटने की अल्लाह हमारी कौम को ताकत और सलाहियत अता फरमाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसराइली जारहियत की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बैनुल अक़वामी क़वानीन की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उसके ख़िलाफ़ हमें सफ़ारा होना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद ये भी कहा कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालिम बंद करवाने का मुतालबा किया है। इसराइली जारहियत नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची में गुरु मंदिर के करीब रेस्टोरेंट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। मज़ीद जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अमर, वाक़ई में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ये भी बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि आग कैसे लगी है, वजूहात क्या थी इसकी? जी देखिए, इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। ये गुरु मंदिर का इलाका है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट वाक़ है जो कि एक कबाब हाउस है, उसमें जो है ये आग लगी थी और उसकी जो पहली मंजिल है उसको भी जो है वो अपनी लपेट में ले लिया था। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से इस आग को काबू किया गया है। इस रेस्टोरेंट के ऊपर फ्लैट्स भी जो है वो 3 मंजिला फ्लैट्स हैं, वो भी वाक़ हैं। जब ये आग लगी थी तो पुलिस और इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत जो है इन अपार्टमेंट्स को भी खाली करा लिया था, लोगों को बाहर निकाल लिया था। इतनी देर में फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया गया, फायर ब्रिगेड पहुंची है, 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्टोरेंट में जो अंदर वाक़ रेस्टोरेंट है उसको जो है वो नुकसान पहुंचा है। इब्तिदाई तौर पर फायर ब्रिगेड का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी, लेकिन कोई जानी नुकसान इस वाक़े में नहीं हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका अमर। ईद की तवील छुट्टियां और लॉकडाउन ख़त्म, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डों की रौनकें बहाल हो गई हैं। ईद की खुशियां मनाने आबाई इलाकों को जाने वाले परदेसियों की वापसी भी शुरू हो गई है, क्योंकि कल काम का पहला वर्किंग डे है। सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। कई दिन से रुका ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। ईद की लंबी तातीलात अपने प्यारों के साथ गुजारने वाले परदेसियों की भी वापसी। जुड़वा शहरों के ट्रांसपोर्ट अड्डे आबाद, रौनकें लौट आईं। हफ्ता भर घरों में गुजारने वाले सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन और कारोबारी अफराद लॉकडाउन के खात्मे पर खुश। कहते हैं फैमिली को काफी वक्त देने का मौका मिला, अब खूब कमाई करेंगे। पहले हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टाइमली जो है ट्रांसपोर्ट खोल दी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ईद के मौके पर हमें फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारने का मौका मिला और बड़ा मज़ा आया। ईद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजरी है और बच्चों के साथ गुजरी है और शुक्र है कि वापस आ गए और ये लॉकडाउन खुल गया और हम अपना कारोबार करें। मुल्क भर में पहिया चलने से ट्रांसपोर्टर्स की एक नहीं 2 ईदें हो गईं। हुकूमत को चाहिए जो भी पॉलिसी बनाए यकसानियत की बुनियाद पे बनाए, ताकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जो चीज़ डिमांड करते हैं वो हुकूमत को अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। गाड़ियां तो चल गईं, लेकिन भैया अब SOPs पर भी अमल करना ताकि पहिया चलता रहे। ईद की तवील छुट्टियां अपने प्यारों के साथ गुजार कर वापस आने वाले अपने कामकाज के लिए भी ताज़ा दम होकर लौटे हैं। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, सबा, रावलपिंडी। नया बजट तरक्याती बजट होगा। सड़कों की तामीर और बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी समेत मेगा तरक्याती मनसूबों पर 1500 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए जाएंगे। बिजली की कीमत में इजाफे, नए टैक्स लगाने समेत IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए रेवेन्यू डॉक्टर वक़ार मसूद खान का समा को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, नए बजट में टैक्स चोरों के साथ तो सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन अवाम पर इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। तीसरी लहर जारी है। अशद ज़रूरत है कि मजमे कम हो। पहले फोकस रहा मईशत को सुकेड़ने का, मजबूरी थी। अब इस्तेहकाम आ गया है और अब तरक्की के सफ़र की तरफ बढ़ते हैं। बजट होगा, इसको हम तरक्याती बजट कहें। हम टारगेट कर रहे हैं कोई 1.5 ट्रिलियन सूबों को मिला। सरमायाकारी का एक बड़ा इंजन सीपैक होगा। लोग परेशान
ये तीसरी लहर की वजह से उनके लाइवलीहुड्स खतरे के अंदर हैं। अब अगर हम अपने इक़दामात के ज़रिए से इसके अंदर इजाफा किया तो इस वक्त उनकी कमर जो है टूट जाएगी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर साहिबा हैं, उन्होंने इससे इत्तफाक कर लिया। ऐसी शराइत हैं जिन पर अमल करने से कीमतों में इजाफा होगा, वो हम नहीं करें। तो ये अभी जो है बातचीत होगी ईद के बाद। उन लोगों को जिन्हें टैक्स नेट में होना चाहिए उन बाहर हैं, उनका हम ताक़ुब कर रहे हैं। कुछ और इस्तिस्नास अभी भी ज़ेर गौर है, उन्हें मज़ीद ख़त्म कर दिया जाए। उन लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं, उनके ऊपर बोझ ना पड़े, बहुत ज़रूरी। बहुत बेहतर ग्रोथ होगी इस साल। 4% का अनाउंस किया है आपने, लेकिन 4 से भी बेहतर हो। फिर हमारे टैक्स की ग्रोथ देखें ना पिछले साल के मुकाबले में, तो बहुत आगे जा रहा है। अब ये टैक्स अगर आ रहा है तो इसी वजह से आ रहा है ना कि भाई लोगों की कमाई हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, तिजारत हो रही है, जिससे आपको टैक्सेस मिल रहे हैं। एहसास कैश प्रोग्राम ने 222 ममालिक में जारी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे को पीछे छोड़ दिया। आलमी बैंक की फहरिस्त में नुमायां पोजीशन, पाकिस्तान चौथे नंबर पर रहा। अहम संगे मील हासिल करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास टीम को शाबाश दी। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। गरीब और मुस्तहिक तबके के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की आलमी सतह पर धूम। प्रोग्राम दुनिया भर में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के पहले 5 मिसाली मंसूबों में शामिल। आलमी बैंक की अहम रिपोर्ट जारी। एहसास प्रोग्राम को मिसाली और बाकी ममालिक के लिए काबिल तक़लीद करार दे दिया। रिपोर्ट में कोरोना वबा के दौरान अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दामात, इतलाक़ और तकमील को जांचा गया। पाकिस्तान 222 ममालिक की फहरिस्त में चौथे, जबकि आबादी के तनासुब के लिहाज से 5वें नंबर पर रहा। एहसास प्रोग्राम ने फौरी इमदाद, शफाफियत और मयार में सबसे आला मकाम हासिल किया। माली तौर पर कमज़ोर अफराद की रजिस्ट्रेशन, जाँच और SMS के जरिए नकद रकम की फौरी मुंतकिली की तारीफ। रिपोर्ट में कहा गया कि यह निज़ाम मुकम्मल खुदकार और सियासी तौर पर गैर जानिबदार है। 15 मिलियन घरानों को 12,000 नकद वजीफा दिया गया। वर्ल्ड बैंक ने कहा एहसास प्रोग्राम दीगर ममालिक के लिए कारआमद हो सकता है, जिससे मुआशरती बहबूद की आलमी बहाली में मदद मिलेगी। प्रोग्राम की आलमी पजीराई पर वज़ीर आज़म इमरान खान की सानिया निश्तर समेत एहसास की पूरी टीम को मुबारकबाद। बुलेटिन के आखिर में खैरपुर का खूबसूरत मकाम कोट डीजी फोर्ट फन तामीर और दिफाई हिकमत अमली में शाहकार और अपनी मिसाल आप भी है। फराह रब्बानी आपको सैर करवाएंगी। जी बिल्कुल। आप सोच रहे होंगे इस वक्त मैं कहाँ हूँ, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैरपुर में और ये डीजी कोट कला है। अगर इसकी बात की जाए लोकेशन की, तो ये दरियाए सिंध से 25 किलोमीटर के फासले पर है। खूबसूरती का शाहकार, सिक्योरिटी से माला माल और अपनी मिसाल आप। लगभग 350 साल तारीख में नाकाबिले तस्खीर रहने वाला कला कोट डीजी, जिसे खैरपुर में तालपुर हुक्मरानों ने तामीर करवाया था। दुश्वार गुजार रेगिस्तान के किनारे बुलंद टीले पर बना कला, दुश्मन की तोपों से महफूज, हाथी सवार दुश्मनों का रास्ता रोकने के लिए नोकदार कीलों वाला दाखिली दरवाजा। अब मैं आपको ये जगह दिखाने जा रही हूँ, घुमाने जा रही हूँ। अंधेरे और रोशनी की यहाँ पर आंख मचोटी है, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया गया। यहाँ पर जगह बनाई गई है बेसिकली वो जहाँ से निशाने दागे जा सकते थे उन लोगों के ऊपर जो यकीनन दुश्मन होंगे। अच्छा, किले की बात की जाए तो सिक्योरिटी की बात तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको ये बताते हैं कि ऐसी जगह पर, ऐसी ऊंचाई पर बनाया गया है कि यहाँ पर कोई हमला नहीं कर सकता। तो इससे भी सिक्योरिटी को आप जांच सकते हैं। ये छोटे छोटे सुराख हैं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी आपको दिखाएंगे कि यहाँ से जो सिपाही हैं वो बैठकर दुश्मन को भगाने की कोशिशें करते थे। रोशनी है यहाँ पर और साथ ही साथ अंधेरा भी है। जब से बना है इस पे कभी अटैक नहीं हुआ और डिफेंस के हवाले से ये बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तालपुर की एक हिस्ट्री है इस इलाके की। इतनी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन इतने साल पहले, इतने 100 साल पहले भी जो है इन सब चीज़ों को इतना खूबसूरती से कंस्ट्रक्ट किया गया। चीज़ें ये देख के इतनी खुशी भी होती थी कि इतना खूबसूरत कंस्ट्रक्शन इतने साल पहले भी ये लोग इतने वेल सेटल्ड, वेल सिविलाइज्ड थे। कला इस कदर मजबूत है कि सदियों से मौसमों की शिद्दत के थपेड़े सहकर भी असल हालत में कायम व दायम है। सिंध के आंचल में मौजूद डीजी कोट जैसे हीरे सयाहों के मुंतजिर हैं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ फराह रब्बानी, समा, खैरपुर। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।